opened your books. हम पेज नंबर 89 पर पहले पढ़ रहे थे जिसके बारे में about we were studying electrons and shells. In the last class we studied about atoms and elements. We know that everything around us is made up of atoms, right? And we can go deep inside the atom. We can see atom has three main things: an electron, a proton, and a neutron. Electron is extremely lightweight and is constantly revolving around the nucleus in circular paths. The second component of atom that we studied in the last lecture is proton, right? It's proton, and the third one is neutron. Protons and neutrons are in the nucleus. We can say that nucleus is their home. Got it? I hope you are clear with this thing that atom has three main components: an electron, a proton, and a neutron. Electron is constantly revolving around the nucleus in circular paths. ठीक हो गया? Whereas जो protons और neutrons होते हैं बेटा वो nucleus के दरमियान में nucleus के अंदर होते हैं. Got it? Now we are studying today the motion of electrons. I'm on page number 89. Electrons orbit the nucleus of an atom at different ranges called shells. Each shell has a different energy level. ठीक है? हर शेल का different energy level है. Increasing further, it is from the nucleus. The shell that is closest one to the nucleus has very low energy. As you can see here, ये जो shell है, the one which is closest to the nucleus, इसकी सबसे कम energy है. ठीक है? As you move forward, इसकी energy increase होती रहती है. For example, जो shell nucleus के सबसे करीब है, this one, जिसको मैं slide पे point कर रही हूँ, the one which is very much closest to the nucleus is named as K. इसको K कहा जाता है. ठीक हो गया न? इसकी सबसे कम एनर्जी होती है बेटा. फिर उसके बाद वी आर मूविंग टूवर्ड्स द सेकंड शेल जिसको L कहा जाता है. इसकी एनर्जी K से ज़्यादा होती है. फिर इसके बाद थर्ड शेल जो है, जो आउटर मोस्ट शेल है, इट इज़ नेम्ड एज N, और इसकी एनर्जी जो होती है ये इन दोनों से ज़्यादा होती है. इसके अलावा और भी शेल्स होते हैं बेटा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा भी हो सकते हैं. फॉर एग्जांपल, मिनिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो अभी तक एलिमेंट में डिस्कवर हुआ, दैट इज़ 1. ठीक हो गया? और जो मैक्सिमम नंबर है जो कि नेचुरली हमें एलिमेंट डिस्कवर किया गया है, उसमें जो इलेक्ट्रॉन का नंबर है दैट इज़ 92. ठीक है? तो 92 आपने इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्बिट, इन शेल्स के अंदर आपने खुद भी आज आपने आपको मैं असाइनमेंट दूंगी, उसमें भी आपने फिल करने हैं. ठीक है? मैं आपको बताती हूँ कैसे फिलिंग होगी. ठीक है? वी हैव दिस जो सबसे जो क्लोजेस्ट है, आई एम टेलिंग यू अगेन, इट इज कॉल्ड, इट हैज लीस्ट एनर्जी, इट इज मोस्ट स्टेबल एंड इट हैज लीस्ट एनर्जी. इसकी सबसे कम एनर्जी होती है और ये सबसे ज्यादा स्टेबल होता है और इसको कहा जाता है. Got it? Now we are moving towards the second shell which is called L, and the third is known as M. ठीक है? इसके अलावा हैं जैसे कि K, L, M और N भी होता है. ठीक हो गया? Now we consider shells as path. The path that is closest हमने पढ़ लिया कि is K, the second is L, similarly third one is M. Now we are going to study about the process of filling of electrons and or the arrangement of electrons. हमने पढ़ लिया कि shells क्या होते हैं, electrons क्या होते हैं, इनके energy levels क्या होती हैं. ठीक है? अब हम पढ़ेंगे, just wait a second. अब हम क्या पढ़ेंगे? अब हम पढ़ने जाएंगे the process of filling of electrons. I can see Hizar, stay attentive. Be attentive, everyone. Okay. As we studied before, and I'm repeating, the shells begin from the center and gradually move outwards. So K shell will have minimum energy. Similarly, L is a little away from the nucleus, so it will have higher energy. इसी तरीके से जो outermost shell है, उसकी maximum energy होगी. Now it is very much important to understand the distribution and arrangement of electrons in the atoms of any elements in different energy levels. An atom of an element is most stable when it has minimum energy. सबसे पहले एक बात you have to keep in mind, जो इलेक्ट्रॉन है सबसे पहले क्लोजेस्ट शेल में आता है,
क्योंकि वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, उसकी बेटा जो एनर्जी होती है वो सबसे ज़्यादा कम होती है। ठीक हो गया? क्योंकि उसकी एनर्जी कम होती है इसलिए वो स्टेबल होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके अंदर एनर्जी कम है और आप आराम से बैठे हुए हैं, यू आर स्टेबल। लेकिन इफ़ यू आर डांसिंग अराउंड, मूविंग अराउंड, जंपिंग, आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा है और अभी आप अनस्टेबल हैं। इसी तरीके से जो शेल होता है न्यूक्लियस के पास, दिस वन, ठीक है, आपको नजर आ रहा होगा अपनी स्लाइड के ऊपर, इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, इससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर नहीं आ सकते। गॉट इट? इसी तरीके से के अंदर द फर्स्ट शेल विच इज क्लोजेस्ट टू द न्यूक्लियस इज कॉल्ड के, और इसके अंदर सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। फिर हम एल की तरफ मूव करते हैं। एल के अंदर आपको नजर आ रहा होगा ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स हैं, राइट? एल जो है बेटा, उसकी सेकंड नंबर पे एनर्जी होती है, लेकिन उसकी एनर्जी जो है वो के से ज्यादा है। ठीक है, के में अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो एल में 8 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। हाउ मच? 8। ठीक है, यहाँ पे आपके बॉटम ऑफ द स्लाइड पर लिखा हुआ भी है के will accommodate only 2 electrons, L will accommodate only 8 electrons and M will have again 8 electrons. इस तरीके से बेटा एक शेल होता है NB which is not in your book, उसके अंदर 32 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। सही हो गया? अब ये देखें, अब हम देखते हैं कि फिलिंग कैसे होती है। अब हमने एक चीज को हमने एक रूल्स याद रखने हैं। के अंदर सबसे पहले के की फिलिंग होगी। के इज दिस फर्स्ट शेल सराउंडिंग द न्यूक्लियस, दिस वन। ठीक है, सबसे पहले के की फिलिंग है। के विल हैव 2 इलेक्ट्रॉन्स। there is L. L will have 8 electrons. And then there is M. M will again have 8 electrons. सबसे पहले rules you have to keep in mind, ठीक है? सबसे पहले K fill होगा, then L and then M. Now we are moving towards this slide. You can see from the image which is at the top right, you can see the shells have been named K, L, M, N. ठीक है, K is equals to 2, L equals to 8, M equals to 18. It means K के अंदर yeah, इसके अंदर, sorry, I have no this I'll correct the image, इसके अंदर 8 ही इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। ओके, तो K जो है बेटा, उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, then we have 8 electrons, then we have 18 and then we have 32. Got it? जैसे कि यहाँ पे आपके लिखा हुआ है, the third energy level M shell can also hold a maximum of 8 electrons. ठीक हो गया? अब प्रोसेस ऑफ फिलिंग देखनी है हमने। प्रोसेस ऑफ फिलिंग इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, अगर आपको मैं आज एक असाइनमेंट देनी है एंड यू मस्ट कीप इन माइंड इसको हमने फिल कैसे करते जाना है। ठीक हो गया? हम इस एग्जांपल से देखते हैं। पहले तो वी नो द रूल्स। ठीक है, K will maximum have 8 electrons, L will maximum hold 8 electrons, M will maximum have 8 electrons. Now we consider the example of helium. एक एलिमेंट है हीलियम, इसके अंदर बेटा 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। गॉट इट? देखिए नीचे लिखा हुआ है कि इट हैज 2 इलेक्ट्रॉन्स, 1 and 2। ठीक है, द एटॉमिक नंबर ऑफ द एलिमेंट इज 2, द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यू डोंट वरी अबाउट दिस सेंटेंस, हमें इसके बारे में बाद में पढ़ते हैं। द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन हीलियम इज आल्सो 2। ठीक है, द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन के शेल विल बी, हमने पढ़ा था के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, सबसे पहले में 2। गॉट इट? तो के शेल में सबसे पहले आएंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स, हेयर एंड हेयर, जहां मर्जी आप एन पे कर दो, यहाँ पे कर दो, यहाँ पे कर दो, लेकिन आपने सिर्फ जो इलेक्ट्रॉन की रिप्रेजेंटेशन है वो आपने ये स्मॉल बॉल से रिप्रेजेंट करनी है, एनीवेयर, नॉट नेसेसरली कि आपकी यही पोजीशन होनी चाहिए, एनी पोजीशन। ठीक है, तो अब हमें पता चल गया हीलियम के अंदर इस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। अब हम मूव करते हैं लिथियम की तरफ। Lithium has 3 electrons. We can apply rule number 3 to fill the electrons in different orbits. The maximum number of electron accommodated in K shell will be 2. ठीक है, the second orbit or the shell orbit is also known as shell will accommodate rest of the electrons. तो हमें पता है कि K में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, 2 only
2 इलेक्ट्रॉन्स। तो जब अब तो इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन्स है, तो तीसरा इलेक्ट्रॉन किधर जाएगा? तो तीसरा इलेक्ट्रॉन एल शेल में चला जाएगा, ठीक है। सबसे पहले के शेल फिल होता है। सबसे पहले आपने के ड्रॉ करना है, आपने न्यूक्लियस ड्रॉ करना है, न्यूक्लियस के बाद आपने के ड्रॉ करना है, के अंदर आपने 2 इलेक्ट्रॉन्स ड्रॉ करने हैं, अगर उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो। अगर एक इलेक्ट्रॉन है तो बस आपने एक ही ड्रॉ करना है। फिर उसके बाद हमने के 2 इलेक्ट्रॉन्स, अगर अगर उसके पास फॉर एग्जांपल 3 और 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो पहले हमने के में 2 पुट करने हैं। 2 माइनस 2 कितने होते हैं? 4 माइनस 2 इज 2, राइट। तो 2 इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास बच गए। या फॉर एग्जांपल अगर 3 माइनस 2 है, ठीक है, 3 इलेक्ट्रॉन्स है, 2 हमने उनको के में अकोमोडेट कर दिया, एक बच गया, ठीक है। एक किधर जाएगा? एक एल शेल में जाएगा। पहले में आपने 2 फिल कर दिए और एक में आपने और एल में आपने 1 फिल कर दिया, ठीक हो गया। इस तरीके से हम अब देख लेते हैं ये the process of filling. In an atom, the electrons fill the energy level starting from the lowest energy level. Open your this page. Okay, this is your page number 90. What is the process of filling? In an atom, the electrons fill the energy levels starting from the lowest energy level K. Okay? When this is full with electrons, the next electron goes into the L shell. When the L shell is full with 8 electrons, then the electrons begin to fill the M energy level. We have already seen that as there are always the same number of protons. Okay, this is also a very important concept जो कि हम अभी थोड़ी देर तक पढ़ते हैं, ठीक है। कार्बन के अंदर बेटा, कार्बन का इन्होंने शो किया हुआ है एटॉमिक नंबर इज 6, राइट। एटॉमिक नंबर इज 6, इसका मतलब है इसका जो इलेक्ट्रॉन नंबर है वो भी 6 है। हम एटॉमिक नंबर के बारे में पढ़ते हैं कि एटॉमिक नंबर होता क्या है, डू नॉट वरी अबाउट इट, ठीक है। फॉर अभी आप इतना कंसिडर करें कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो 6 हैं, ठीक हो गया। सबसे पहले जो 2 है, जो के है, उसने कितने इलेक्ट्रॉन्स फिल करने हैं? 2, गॉट इट। तो पहले 2 जो है वो स्टेबल वाले में आ गए, जो इसके पास सबसे कम एनर्जी है, जो सबसे ज्यादा स्टेबल इस टाइम है के में, ठीक है। के में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। फिर हमारे पास 6 माइनस 2 कितने होते हैं? 4। 2 तो हमने पुट कर दिया अपनी अपनी प्लेसेस पे, तो बाकी कितने रह गए? 4। 4 आ जाएंगे एल में। इसी तरीके से बेटा सोडियम के 11 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। 2 आ गए के में, पीछे कितने रह गए? 9, ठीक है। 2 आ गए के में, the left ones are 9. The L shell can accommodate only 8 electrons, but we have 9 electrons right now that are left, ठीक है। तो जो 8 electrons हैं बेटा वो L shell में आ जाएंगे, और जो कितने टोटल हो जाते हैं? 10. The left one, the one जो एक रह जाता है वो फिर M shell में चला जाता है। 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स एल शेल में नहीं जाएंगे। सिमिलरली 2 जो के है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा नहीं अकोमोडेट हम कर सकते, गॉट इट। ये देखें, के में 2 है, एल में 8 है और एम में 1 है, गॉट इट। के will only accommodate 2 electrons, L will accommodate 8 electrons and M will accommodate 1 electron, गॉट इट। अगर ये आप प्रोसेस बेटा अभी नहीं समझेंगे, ठीक है, यू विल नॉट बी एबल टू डू इट एट योर होम्स, और उसके बाद आपको कभी भी ये समझ नहीं आएगी, ठीक है। यू जस्ट कीप इन माइंड, आपको बस ये याद होना चाहिए कि ये प्रोसेस कैसे होता है, गॉट इट। सबसे पहले मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, बार बार रिपीट कर रही हूँ, वी हैव 3 शेल्स के, एल एंड एम। हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो हमें कहा जाता है कि आपने फिल करने हैं। आपको आइडिया होना चाहिए कि पहले शेल में कितने होते हैं, दूसरे में कितने होते हैं, तीसरे में कितने होते हैं। पहले में 2 होते हैं, दूसरे में 8 होते हैं, तीसरे में भी 8 होते हैं, गॉट इट। तो बेटा जो पहले वाला होता है, जब हमें कहा जाता है कि आपने फिल करने हैं इलेक्ट्रॉन्स, वी टेक द फर्स्ट शेल फर्स्ट। फर्स्ट शेल विल बी फर्स्ट वन, it is the stable one, it has the lowest value of energy, ठीक है। तो सबसे पहले जो इलेक्ट्रॉन्स हमें दिए जाते हैं, फॉर एग्जांपल अगर इलेक्ट्रॉन्स 10 है, ठीक है, किसको ये एलिमेंट दिया जाता है और बताया जाता है कि इसके इलेक्ट्रॉन्स 10 है और आपने 10 के 10 फिल करने हैं, ठीक है। सबसे पहले के हमारे पास आएगा, सबसे पहले हमारे पास क्या आएगा? के, ठीक है, जिस तरीके से ये के है।
के हम इस तरह सर्कुलर ऑर्बिट बनाएंगे, के के अंदर हम 2 इलेक्ट्रॉन्स पुट करेंगे, ठीक हो गया। अब हमारे पास टोटल कितने थे, 10, 2 हमने पुट कर दिए, पीछे कितने रह गए, 10 माइनस 2 8। अब वो जो 8 इलेक्ट्रॉन्स है वो किधर जाएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन्स बेटा सेकंड ऑर्बिट में आ जाएंगे, के एल शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स। अगर उस 8 से ज्यादा अगर कोई होता तो एल भी सफिशिएंट हो जाता, एल 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट नहीं करता, तो जो एक्स्ट्रा होते हैं फिर वो हम एम में ले जाते हैं, ठीक है। इसी तरीके से जब ये देखें हाइड्रोजन है, ठीक है, यू हैव टू प्रैक्टिस दिस एट योर होम। हाइड्रोजन है, मतलब एट इन योर फ्री टाइम, हाइड्रोजन हैज अ सिंबल एच, ठीक है। ये सिंबल्स भी आपको याद होने चाहिए, यू हैव टू मेमोराइज देम, ठीक है। हाइड्रोजन हैज अ सिंबल एच, इसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, 1, ओके। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 1। आई एम ऑन योर पेज नंबर 91, ठीक है। 91 पेज पर ये टेबल बनाया गया है। हाइड्रोजन के पास कितने, क्या हाइड्रोजन के पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, 1। तो के शेल में कितने आएंगे, के शेल में आप बेटा अंदाज देखें, यहाँ पे के शेल में 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, ये देखें पूरी लाइन आप ऑब्जर्व करें, बेशक इलेक्ट्रॉन्स का जो नंबर है दैट इज गोइंग टूवर्ड 20, ठीक है, 1 2 3 से लेकर 20 तक जा रहा है, लेकिन के शेल में हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन्स ही आते हैं, दैट इज द फर्स्ट शेल। उसके बाद हम सेकेंड शेल की तरफ मूव करते हैं, ठीक है। सेकेंड शेल की तरफ हम, इस सेकेंड शेल तब भी आता है जब 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एटम के पास। अगर आपके एटम के पास 1 इलेक्ट्रॉन है या 2 इलेक्ट्रॉन है तो के शेल इज सफिशिएंट, के शेल विल टेक ऑल ऑफ द 2 इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन अगर आपके पास इलेक्ट्रॉन्स 2 से ज्यादा होने लग जाएंगे तो क्या होगा, इवेंचुअली सेकेंड शेल आ जाएगा, और वो अगर फॉर एग्जांपल 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो थर्ड इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि के विल नॉट टेक एनी मोर इलेक्ट्रॉन, के इज सेइंग कि आई एम फुल, मेरा पेट भरा हुआ है, प्लीज गो टूवर्ड्स द एल शेल। तो फिर ये एल शेल की तरफ जाएगा और वहां पे एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, गॉट इट। एल शेल में बेटा देखो 8 तक इलेक्ट्रॉन्स आए, 10 इलेक्ट्रॉन्स थे नियॉन के पास, सी नियॉन का सिंबल होता है Ne, नियॉन के पास थे 10 इलेक्ट्रॉन्स, 2 फर्स्ट में आ गए और सेकंड में 8 आ गए। अब 8 से ज्यादा, 8 जब इलेक्ट्रॉन्स एल खा लेता है, एल अपने अंदर रख लेता है 8 इलेक्ट्रॉन्स, तो वो कहता है आई एम नाउ सफिशिएंट, प्लीज अब मेरे पेट में और जगह नहीं है, काइंडली मूव टुवर्ड्स द अदर शेल। तो थर्ड शेल आ जाता है, दैट इज द एम शेल, ठीक है। एम बेटा जो होता है वो भी सिर्फ 8 पुट कर सकता है, लेकिन जब इसका भी बेली भर जाती है, ये भी 8 से ज्यादा जब इलेक्ट्रॉन्स बढ़ना शुरू हो जाते हैं, फॉर एग्जांपल 18 में, ठीक है। आर्गॉन, आर्गॉन एक गैस है, अगर इसके पास 18 जो है इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, के में 2 आ गए, एल में 8 आ गए, एम में फिर 8 आ गए, ठीक है, तो ये इसकी भी बेली भर गई। जब पोटेशियम की बारी आती है, द वन विद द 19 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, 2 आ गए, के में 8 आ गए, एल में एम में फिर 8 आ गए, ठीक है, जो एक बच जाता है बेटा, इट गोज टुवर्ड्स द फोर्थ शेल, वो फोर्थ शेल में चला जाता है। फोर्थ शेल कैन अकोमोडेट हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, 32 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। मैं यहाँ पे आपकी स्लाइड पे भी लिख दूंगी ताकि आपको घर में परेशानी ना हो। तो जो फोर्थ शेल है उसमें 32 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, अभी बहुत ज्यादा उसकी कैपेसिटी पड़ रही है, उसकी बेली अभी बहुत ज्यादा एम्प्टी है, अभी तक सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन आया। इस तरीके से बेटा इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो फिल होते रहते हैं। नाउ व्हाट इज मास नंबर, पहले हम पढ़ते हैं एटॉमिक नंबर के बारे में। व्हाट इज एटॉमिक नंबर, जिसके बार बार हमें रेफरेंस दिया जा रहा था, बार बार हर जगह बताया जा रहा था कि कुछ एटॉमिक नंबर भी होता है। As we know that elements are the building blocks for all the matter you see in the world. Now the question is how you can distinguish these elements. आपको पता है कि साइंटिस्ट ने अभी तक 118 एलिमेंट्स डिस्कवर कर दिए गए हैं और 117, ठीक है। तो आपको पता चलना चाहिए, आपको कैसे पता चलेगा कि ये कार्बन का एलिमेंट है, कि ये हाइड्रोजन का एलिमेंट है, ये ऑक्सीजन का एलिमेंट है, आपको कैसे पता चल सकता है। there is this rule, ठीक है, there is this natural phenomena basically you can say, एक नेचुरल फिनोमिना है एटॉमिक नंबर का। हमें इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के नंबर से पता चल जाता है कि ये कौन सा एलिमेंट है। सही हो गया, ठीक है।
I hope you get it. The total number, the answer is atomic number. पहले मैं आपको ये बताती हूँ. Every element has a unique atomic number that helps them to distinguish between elements. So what is atomic number? The total number of protons that are present in the nucleus of every atom of a chemical element represents the atomic number of the element. Each element is characterized by a unique atomic number and it is represented by letter Z. ठीक है. As a matter of fact, every atom of an element consists of the same number of protons. Got it? हर एलिमेंट के सेम नंबर, हर जितने उसके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही उसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, ईच एटम ऑफ ऑक्सीजन हैज 8 प्रोटॉन्स इन इट्स न्यूक्लियस, सो द एटॉमिक नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज 8. ठीक है. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू नोट. एटॉमिक नंबर जो होता है वो किस पे डिपेंड कर रहा होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स पे. जितने प्रोटॉन्स का नंबर होता है उतना ही हम कहते हैं कि इसका ये इसका एटॉमिक नंबर है. फॉर एग्जांपल, एक एलिमेंट है, उसका उसके अंदर कितने प्रोटॉन्स है? 88. तो हम क्या कहेंगे? इसका एटॉमिक नंबर कितना है? 88. और नेचर ने जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स किसी एटम को दिए हैं, फॉर एग्जांपल इफ 32 प्रोटॉन्स आर रिजाइडिंग इन द न्यूक्लियस, ठीक है, the same number of electrons will be revolving around the nucleus. Got it? Number of protons and number of electrons are also equal. See the light brown thing. ठीक है. Light brown जो dialog box है, see that atomic number is equal to number of protons and number of protons is equal to number of electrons. Keep this rule in mind also. Got it? जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा उतना ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होगा और उतना ही एटॉमिक नंबर होगा. फॉर एग्जांपल, अगर मैं किसी को कहूँ ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, तो मैं गेस कर सकती हूँ, अच्छा अगर इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो इसके पास 8 ही प्रोटॉन्स होंगे. गॉट इट? अब इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसके पास 8 प्रोटॉन्स हैं. अगर इसके पास 8 प्रोटॉन्स हैं तो इसका एटॉमिक नंबर कितना होगा? 8. गॉट इट? आई होप यू आर गेटिंग मी, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है. अगर फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ सोडियम के पास we are having 8 electrons in the sodium, no, 11 electrons in the sodium. Got it? There are the 11 electrons in the sodium. Then we can think by this rule, अगर तो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने होंगे? 11. ठीक है. नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने होंगे? 11. जब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 11 है तो एटॉमिक नंबर कितना होगा? 11. Point to note, every atom consists of same number of protons and same number of electrons. जितने protons होते हैं उतने electrons होते हैं that are revolving around the nucleus, and the atomic number is also the same as the number of proton. The total number of proton present in the nucleus of every atom of a chemical element represents the atomic number of the element. जैसे कि हम ये देखते हैं atomic number of few elements. हाइड्रोजन में कितने होते हैं हमारे पास? हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर है 1. इस रूल के अकॉर्डिंग हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर है 1. नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितना हुआ? 1. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना हुआ? 1. इसी तरीके से हीलियम के 2, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है. नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हुए? 2. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हुए? 2. एंड देन वी हैव दिस लिथियम. Lithium is the third element in the periodic table. इसका atomic number is 3. Number of protons again by this rule will be 3 and number of electrons will be 3. इसी तरीके से beryllium है. अब हम दोबारा जाते हैं इस टेबल की तरफ. ठीक है. इस टेबल में फॉर एग्जांपल सोडियम के पास देखो, मैग्नीशियम के पास फॉर एग्जांपल देखते हैं हम 12 एटॉमिक नंबर है. बाय दैट रूल जितना एटॉमिक नंबर होगा उतना प्रोटॉन नंबर होगा और उतना ही इलेक्ट्रॉन नंबर होगा. ये देखें, जितना एटॉमिक नंबर है उतना इलेक्ट्रॉन नंबर है, जितना एटॉमिक नंबर है उतना इलेक्ट्रॉन नंबर है. कहीं भी आप देख लें, कहीं से भी आप अंदाजा लगा लें, इस पूरे टेबल में से इवन जितने 118 एलिमेंट्स जो अब तक डिस्कवर हो चुके हैं उनमें भी आप ये ऑब्जर्व करेंगे कि जितना आपका एटॉमिक नंबर है उतना आपका प्रोटॉन नंबर है उतना आपका इलेक्ट्रॉन नंबर है. आई एम रिपीटिंग दिस अगेन एंड अगेन बिकॉज वी आर मूविंग टूवर्ड्स अनदर इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट.
ठीक है, जो कि इससे थोड़ा सा डिफरेंट है, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। वी आर मूविंग टूवर्ड्स द टॉपिक ऑफ mass number. ठीक है, what is mass number? Mass number, beta, it is defined as the sum of protons and neutrons. The mass number is almost equal to the atomic mass of a particular atom. Therefore, it can be written as, देखें, जो हमने लास्ट क्लास में लास्ट लेक्चर में हमने एक बात पढ़ी थी कि इलेक्ट्रॉन इज वेरी लाइट वेट एंड देन वी हैव प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स दैट आर वेरी हैवी वेट। ठीक है, जो प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स हैं बेटा, उनका वेट बहुत ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो टोटल एटम का मैस होता है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स पर कर रहा होता है डिपेंड। ठीक है, तो जो मैस नंबर होता है, जो एटॉमिक मैस होता है, जो इलेक्ट्रॉन का, जो एटम का पूरा मैस होता है, वो भी न्यूट्रॉन्स पर और प्रोटॉन्स पर कर रहा होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स तो बाहर होते हैं और वो बहुत लाइट वेट होते हैं, वो कॉन्स्टेंटली रिवॉल्व कर रहे होते हैं अराउंड द न्यूक्लियस। तो बेटा जो मैस नंबर होता है, इट इक्वल्स टू द सम ऑफ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ठीक है, जितने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होंगे, जितने नंबर ऑफ उनके साथ हम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को प्लस करेंगे, हमारे पास आएगा मैस नंबर। ठीक है, mass number depends on protons and neutrons as we have studied in the last class as well. ठीक है, अब हम एक न्यूट्रॉन्स के बारे में नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अभी तक आज हमने बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ी हैं। इलेक्ट्रॉनिक शेल्स के बारे में वी हैव स्टडीड अबाउट द प्रोसेस ऑफ फिलिंग ऑफ द शेल्स, वी हैव स्टडीड अबाउट एटॉमिक नंबर, और अब हम मैस नंबर को स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक हो गया? ओके, आई एम, मैं रिकॉर्डिंग